So, in applied zoology semester 5, next is aquaculture. Before going to the aquaculture, I have discussed about the marine fishery, freshwater fishery, and brackish water fishery. That was the introduction. But in this aquaculture, pre and post stocking management, before culturing the fish, number of the farmers in our fishery, we are denoting the peoples who are connecting to the fish farming. They are known as farmers. So in aquaculture, culture of the fishes are there. Now this culture of the fishes, माझा चेहरा दिसतोय का ग पूर्वा? हो सर. हा. हो आणि दिसतात. मी बोललेलं पण ऐकू येत आहे आणि स्लाइड पण दिसत आहे. हो ओके. हो. So in aquaculture, culture of the fishes are there. Now fish is a particular Pisces is a class where million number of the fish species are there. Among them, some are edible. Edible म्हणजे खाण्यायोग्य. आणि बाकीच्या फिशेस ज्या आहेत त्या ही सुद्धा खाता येतात. But most of the edible fishes which are can be cultured included in the aquaculture. ज्या खाण्यायोग्य आहेत, ज्या कल्चर करू शकतो त्याला आपण कशामध्ये टाकतोय? aquaculture मध्ये. And in aquaculture there is a topic pre and post stocking management. In pre and post stocking management, construction and maintenance of fish farm. When I have to construct a farm, when I have to start a fish farm, then what kind of the structure I have to consider? I have to consider the topography. I have to consider the water source. I have to consider the location. Water supply, soil type. One is a topography, another is a soil type, and third is a water supply. Before going to farm or construct a fish farm, we have to consider three basic properties or basic needs to the site. Site वर ह्या गोष्टी असायला पाहिजे. पहिली आहे ती topography. Now what is the topography or what is the location of a fish farm? Whenever we are considering that there should be a fish farm, the location should be like that. There should be the accumulation of water. First is the water source should be there. आपण आता जे फिश पॉन्ड किंवा फिश फॉर्म बघणार आहोत ते फिश फॉर्म आर्टिफिशियली तयार केलेले नाही तर नॅचरली तयार होत आहेत बा. नॅचरली जसं आता आपल्या आरमोरीमध्ये दुर्गा मंदिर आहे, तिथे एक पॉन्ड आहे. त्याच्यानंतर आजूबाजूला सुद्धा आरमोरीच्या खूप सारे पॉन्ड आहेत. तुमच्या गडचिरोलीमध्ये पॉन्ड आहेत, वर्षाला पॉन्ड आहेत. तर हे पॉन्ड माणसांनी तयार केले की नॅचरली तयार झाले? तर माणसांनी काही त्याच्यात मदत घेतली आहे. माणसांनी त्याची टोपोग्राफी बघितली आहे, त्यांची सॉइल टाईप बघितली आहे, त्याचा वॉटर सोर्स बघितलाय की आजूबाजूला कॅनल सिस्टम आहे का, रिव्हर आहे का, बिगर रिझर्वायर्स आहेत का, सो वेल आहेत का, अशा पद्धतीने आपल्याला वॉटर सोर्स टोपोग्राफी. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अ लोकेशन ऑफ अ फिश फार्म where I have to start my fish farming. That is the first point. Sophia. So we have to start. हाँ, आवाज आ रहा मेरा? आवाज आ रहा? और स्लाइड भी दिख रही? हाँ सर. Okay. Now topography means it is a surface feature. Surface feature means bottom surface feature. उस पॉन्ड का बॉटम सरफेस फीचर एरिया कैसा है? इट इज 3 साइड कंप्लीट एंड 1 साइड इज ओपन. जसं आपण काशवीकडे जातो किंवा आपण पीबीआर ला गेलोय तिथे आपल्याला पॉन्ड किंवा रिव्हर दिसतात. रिव्हरला 2 बँक असतात आणि पॉन्डला 3 बँक असतात. एक ओपन असते.
that is known as a view or a feature of the pond. त्याचा फीचर कसा असायला पाहिजे, तर एखाद्या बॉल सारखा, एखाद्या ट्रे सारखा, ट्रे माहिती आहे ना, डिसेक्टिंग ट्रे वगैरे, त्याच्यासारखा असायला पाहिजे. त्याच्या 3 साइड, the sides of the pond, 3 sides of the pond should be elevated and one side should be open, and the pond water should be drain out and drain in. याच्यातलं पाणी आपल्याला काढता आला पाहिजे आणि पाणी आतमध्ये भरता आला पाहिजे. The ideal topography of the fish farm site is gentle, sloping. Gentle असायला पाहिजे, sloping असायला पाहिजे, आणि त्याचे जे साइड आहेत ते elevated असायला पाहिजे. And outlet, fourth one is the outlet. त्याचा आउटलेट म्हणजे बाहेर पाणी काढता आलं पाहिजे आणि पाणी आतमध्ये टाकता आलं सुद्धा पाहिजे. पॉन्ड म्हणजे छोटासा नाही, एक बांधी नाही, जी आपल्या शेताची बांधी असते त्याला आपण पॉन्ड बनवतो हा नाही. आपण आज जो शिकत आहोत हा आहे मोठ्या पॉन्ड. नॅचरली और आर्टिफिशियली कॅन बी प्रिपेअर्ड. I have to see the location of the pond. I have to see the topography of the pond. I have to see the 3 sides of the pond should be elevated and one side should be open and there should be the outlet and inlet. Okay, this is known as topography. Such area can be converted into large pond. अगर ये सब है तो हम लोग उसको लार्ज पॉन्ड में आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के पॉन्ड रहते हैं, तो ऐसे पॉन्ड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद यूनिफॉर्म बॉटम डेप्थ. उस पॉन्ड की बॉटम जो है वो यूनिफॉर्म चाहिए, वो एक है. सीलिंग ऑफ द बॉटम टू बी प्रिव्हेंट लिकेज. त्या बॉटमला काय करायचं आहे आपल्याला, सीलिंग करायचं आहे. क्ले, सील्ड याच्यानी सील करायचं आहे. आणि युनिफॉर्म बॉटम डेप्थ and sealing of the bottom prevent leakage. There should be flow of water and complete drainage. Flow of water should be inside the pond. केव्हाही रेनी वॉटर आला, कुठलाही कॅनल वॉटर आला तर तो त्या पॉन्ड मध्ये जमा झाला पाहिजे. जास्त पाणी झालं पॉन्ड मध्ये तर तिथून तो बाहेर गेला पाहिजे, नाहीतर का होईल, त्याचे जे 3 बँक आहेत ते फुटून जातील आणि ते सगळे मातीचे आहेत, कॉन्क्रीटचे बनवलेले नाही आहेत. इलेव्हेशन जे आहेत ते पॉन्डचे. दिस इज द लार्ज पॉन्ड artificially or naturally can be created. Next is the soil type. It must be impervious so that it allows any seepage. हा जो वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी आहे, पॉन्ड मध्ये वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी कशाची असते, कोण करते, तर सॉइल करते. तर ही जी सॉइल आहे ही रॉकी नसावी, सँडी नसावी, लाइमस्टोन नसावा. अँड दीज soil type must be clay type or silt type that must hold the water. Heavy and silty clay are suitable and pond construction in this area store water for long period. Stocking, nursery and rearing constructed as this required store water for short period only. Stocking, nursery आणि rearing असे 3 पॉन्ड आहेत. त्या पॉन्डच्या आजूबाजूला मी तुम्हाला नंतर डायग्राम दाखवतो की एका मोठ्या पॉन्डच्या आजूबाजूला हे हॅचरी पॉन्ड असतात, रेअरिंग पॉन्ड असतात, स्टॉकिंग पॉन्ड असतात, मार्केटिंग स्टॉकिंग पॉन्ड असतात. म्हणजे मार्केटमध्ये फिशेस विकायला नेणारे पॉन्ड वेगळे आहेत, रेअरिंग करणारे वेगळे, हॅचिंग करणारे वेगळे, यंग वन डेव्हलप होणारे वेगळे. तर असे वेगवेगळे पॉन्ड साठी जो आपल्याला सॉइल लागते तो वेगवेगळा लागते. हॅचिंग साठी जे यंग वन असतात, अंड्यातून बाहेर निघणारे फ्राईज असतात, फिंगरलिंग्स असतात, याच्यासाठी सॉइल वेगळी, रेअरिंग साठी वेगळी, बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन अ प्लॅन्क्टॉन. दीज फिशेस दे आर फीडिंग ऑन अ प्लॅन्क्टॉन. सॉइल, what type of the soil should be there? Porous soil. Also to the bottom can be treated with the clay or suitable soil sealants. Suitable soil should be there that should hold the water. It should not like that water is there and bottom of the pond is leaving that water into the earth, नीचे चला जाएगा वो.
पानी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्ले जो रहता है वो क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है। उसके बाद है soil analysis should be done. What type of a soil should be done? Soil should be there in the pond, so there should be the soil analysis should be done by analyst. वो बताएगा अपने को कि कौन से टाइप की सॉइल होना चाहिए, फिर हम उसमें डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या नेचुरली हो सकती है। डिपेंड ऑन दैट गुड सॉइल वुड रिजल्ट इन फर्टाइल पॉन्ड। अगर अच्छी सॉइल है तो अच्छा फर्टाइल पॉन्ड बनेगा वो, ठीक है। उसके बाद है देयर शुड बी अ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर। डिपेंडेबल सोर्सेस ऑफ वाटर सप्लाई आर लेक, रिजर्वायर, रिवर, देन कैनल, सरफेस रन ऑफ वेल्स। इतने सारे हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि ये हमारा वाटर सोर्स है। अगर समर में अगर वो पॉन्ड ड्राई हो गया तो क्या करेंगे? So these are the water sources, water supply near the fish pond. There should not be the stage of the pond that it will dry in the summer. In the summer also, there will be the supplementation of the water should be there, and these are the sources nearby the pond should be there. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे जगह पॉन्ड बनाओ जहां पे ये सोर्सेस है, वाटर सोर्सेस है, ठीक है। Big tank, reservoir and lakes are the best sources of water. Dams are the sources of water. These sources fill the pond, constant water, and maintain the water level in these sources of water. If the sources of water are there, then there will be the we can say sustenance of the pond. This is a layout of the fish farm. On the right side, there is a round pond and number of hatchery ponds are there. Then nursery ponds are there, and below there is a rearing ponds are there. Can you observe the diagram? Can you see the diagram, Purva? Okay. Yes, sir. Okay. So these are the main tank, and in the main tank there are hatchery ponds, छोटे छोटे वाले हैं, फिर नर्सरी पॉन्ड थोड़े से बड़े हैं, और रेयरिंग पॉन्ड उससे बड़े हैं, ठीक है। ये जो पॉन्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज प्लान ऑफ द फिश पॉन्ड। इसमें हैचिंग पिट्स, नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड इज देयर। समटाइम्स if the pond is round, around them there will be the preparation of the hatchery, rearing, and we can say nursery pond. But in below diagram we can see one after the other, ponds are connecting to one after the another. They are parallel, ponds are parallel, and these parallel ponds results into the, देखो एक फिश को अगर रेयर करना है तो उनके अंडों को जमा करना पड़ेगा, उनके फ्राइज को जमा करना पड़ेगा, उनके फिंगरलिंग्स को जमा करना पड़ेगा, उनके एडल्ट को जमा करना पड़ेगा, और एडल्ट बेचने लायक अगर हो गए तो उनको बेचना भी पड़ेगा, उसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा। मी एक एक्झाम्पल सांगतो, एक माझे मित्र आहेत, वांगे त्यांनी लावले आणि त्यांच्या शेतामध्ये 1000 किलो वांगे झाले, पण ते विकू शकले नाही। मार्केटमध्ये टोपलाभर वांगे घेऊन जाणार आणि ते किती जणाला विकणार? सो देयर शुड बी द मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी. इफ फिश फार्मिंग इज देयर, फिश मार्केटिंग शुड बी देयर. So there should be the strategy. So stocking ponds are there. In the stocking pond, fishes are stocked for temporarily, and for the next progeny, next generation, adult male and female kept for reproduction. कुछ फिशेस को रिप्रोडक्शन के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लेआउट ऑफ फिश फॉर्म है। उसके बाद खत्म। तो इसके बाद जैसे हम लोगों को पॉन्ड बनाना है, नर्सरी पॉन्ड, हैचरी पॉन्ड, या तुम्हारे ये पैरेलल पॉन्ड, ये बनाते वक्त हम लोगों को बहुत सारी केयर करनी पड़ती है कि हम लोगों को जूप्लैंक्टन देना है, उनको फूड देना है, प्रीडेटर से बचाना है, फर्टिलाइजर करना है, लाइमिंग करना है। उसके बाद एक मिनट,
उसके बाद जैसे हैचिंग पॉन्ड कितने साइज का होना चाहिए, रेयरिंग पॉन्ड कितने साइज का होना चाहिए, कितने मीटर बाय कितने मीटर का, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब आपके नोट्स में दिया है। मैं आपको बता सकता हूँ पर 30-40 मिनट में ये सब नहीं हो सकता। तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि हैचिंग पिट्स 2.5 मीटर बाय 1.5 टू 2.75, ये हैचिंग का छोटा वाला पॉन्ड है। और उसके बाद है नर्सरी 15 बाय 15 बाय 1.5 मीटर। उसके बाद रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड, ये बड़े बड़े होते हैं। तो इनको बनाते वक्त जैसे उन मेन पॉन्ड के साथ बनाना है, मेन पॉन्ड के साथ बनाना है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्शन ऑफ द फिशेस इन n नंबर। n नंबर में हम लोगों को क्या मिलेगा, अपने को प्रोडक्शन मिलेगा। और इतना डिलीशियस फ्लेश ऑफ द फिश इज देयर इज अ मार्केट वैल्यू। why one should start the fish farming, why Purva or Paparkar sir will start the fish farming? Because it is gaining the earn, it is gaining the rupees, investment कम और प्रोडक्शन ज्यादा। हमारे जो धान के खेत है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है और गेन कम है। इसीलिए हम लोगों को अभी जैसे ज़ूलॉजी में बीएससी फाइनल ईयर में ये सिलेबस में डाला गया है, तो ये देखना है कि भाई इसका क्या रीजन क्या है। एनीबडी, सबको नौकरी नहीं लगने वाली, लड़कियों को छोड़ के। लड़कियों को क्या लगने वाला है, सिर्फ मैरिजेस होने वाले हैं, पर लड़कों को नौकरी नहीं लगने वाली। तो उन्होंने क्या करना है कि ये जो चीजें है, फिश फार्मिंग है, सेरिकल्चर है, पर्ल कल्चर है, इसमें जाकर तो देखो, यू विल गेट द अर्निंग, यू विल गेट द अर्निंग। आपको पैसा मिलेगा, इतना ज्यादा पैसा मिलेगा जो नौकरी वाला नहीं कमा सकता। एंड दैट्स व्हाई देयर द प्रोसीजर्स आर देयर। अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इन द डिटेल we will see in the next class that pond maintenance and improvement, इसका मेंटेनेंस किया कैसे जाता है, उसको उसके बाद लाइमिंग कैसे किया जाता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द पॉन्ड कैसे किया जाता है। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? लाइमिंग यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड उस पानी में डालते हैं और उसका पीएच बढ़ाते हैं। मेंटेनेंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द पॉन्ड, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, टू गेट द हाई फर्टिलिटी, टू गेट द हाई प्रोडक्शन ऑफ द फिशेज। उसके बाद लाइमिंग, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऐसे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द पॉन्ड, टू गेट द हाई यील्डिंग फ्लेश अमाउंट ऑफ द फिशेज। उनके बड़े बड़े किलो के फिशेज, आई हैव सीन 2 or 3 days before when I go to the market, 30 kg katla, I have seen 30 kg katla and 10 kg eggs was there, उसके बॉडी में उस फिश के 10 kg eggs was there, such a big fish। उस एक आदमी को उसका बेनिफिट कितना हो गया होगा, सोचो। अगर एक फिश इतने केजी की मैं देख सकता हूँ, तो आप उसको रेयर करके इतने बहुत सारे फिशेस बना सकते हैं। एंड देन यू कैन रेयर। Have you, पूर्वा, आपने ये स्क्रीनशॉट लिए सभी इसका? हाँ सर। ओके। उसके बाद है इनऑर्गेनिक फर्टिलायझर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलायझर। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलायझर दॅट वी नो, शेणखत, बाकीचे युरिया वगैरे हे सगळं त्याच्यात टाकले जातात। आपण पुढच्या क्लासमध्ये याचं पूर्ण डिटेल बघू की इम्प्रूवमेंट ऑफ द पॉन्ड, देयर व्हाट टाइप ऑफ द लाइमिंग, फर्टिलायझेशन ऑफ द पॉन्ड, then you will get organic and inorganic fertilizers। उसके बाद है आर्टिफिशियल फीडिंग, फिशेस को आर्टिफिशियल फीडिंग किया जाता है। फिशिंग एंड हार्वेस्टिंग, उसका हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, नेटिंग से हार्वेस्टिंग करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड, छोटे बच्चे को नर्सरी में डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो सारी चीजें सीखे। घर में भी उसको नर्सरी दिया जाता है, खाना दिया जाता है, सब दिया जाता है, दूध दिया जाता है। ऐसे ही तरीके से ये छोटे छोटे फिशेस को हम लोगों को क्या करना है, रेयर करना है। और मार्केट टेबल फिश अगर होती है तो उसको आप बेचो, कुछ फिशेस को रखो, इसलिए कि नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट सीजन में मेल फीमेल विल रेयर अगेन, दैट विल प्रोड्यूस द एग्स।
वो फिर से एग्स प्रोडक्शन के लिए उसको बोलते हैं सीड। सीड के लिए मेल फीमेल को रखा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया जाता है इन लोगों को, यानी इन लोगों को बोलने के बजाय फिशेस को स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिया जाता है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्शन के इंजेक्शन दिए जाते हैं टू गेट द हाई क्वालिटी ऑफ द हाई नंबर ऑफ द फिशेस। जनरली क्या होता है, डीमर जो होता है नदी में जाता है, पॉन्ड में जाता है, मच्छी जमा करता है, मार्केट में जाके बेचता है। मगर हम लोग क्या करने वाले हैं, रेयर करने वाले हैं। हम लोग उस फिश को बोलेंगे कि कुछ ज्यादा प्रोडक्शन कर एग का, और ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद मार्केटेबल फिश आएंगी, हम लोग उसको फिर ट्रक से बेचेंगे, ट्रक से बेचेंगे और करोड़ों कमाएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, इंट्रोडक्शन बताया, जैसे तुम्हारा सॉइल टाइप, टोपोग्राफी कैसे होनी चाहिए, वाटर सप्लाई कैसे होना चाहिए, उसके बाद ये पॉन्ड कैसा होता है उसका डायग्राम मैंने आपको बताया, आपके स्लाइड पे है। उसके बाद पैरेलल वाले पॉन्ड भी बना सकते हैं, और इस तरीके से वहां पे मैन पावर रहता है। मैन पावर भी तंबाकू सिगरेट वाला नहीं चाहिए। जो काम करता ना वहां पे वो आदमी, वो भी तंबाकू और सिगरेट खाने पीने वाला नहीं चाहिए, उससे सारे फिशेस मर जाएंगे। ठीक है, दैट वी विल सी इन द मेंटेनेंस ऑफ द पॉन्ड, इंप्रूवमेंट ऑफ द पॉन्ड इन जनरल। जैसे भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हैमर नहीं करूंगा मैं आपको, तो